بڑھاپا انسان کی زندگی کا وہ حسین اور سنہری لمحہ ہے جب تجربات اور یادیں دل پر نقش ہو چکی ہوتی ہیں۔ ایسی زندگی میں اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کی عبادت میں مشغول ہو جائے تو اس کا اجر بے پناہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں یہ تسبیح پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ میدان جنگ سے بھاگنے والا ہی کیوں نہ ہو، اور مرنے کے بعد جنت اس کا انتظار کرتی ہے۔ یہ پیغام دل کو ایک امید اور سکون کی روشنی دیتا ہے، آنکھیں نم کر دیتا ہے اور روح کو یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر حالت میں انسان کے قریب ہے۔ مرنے کے بعد جنت کی خوشخبری اس تسبیح کے پڑھنے والے کے لیے ایک عظیم انعام ہے جو نہ صرف گناہوں کو دھو دیتا ہے بلکہ دل کو بھی سکون بخشتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسے روحانی سفر پر روانہ ہوئے جو نہ زمین کا تھا نہ آسمان کا، بلکہ ایک عالم نور تھا جہاں نہ وقت کی قید تھی نہ فضا کی حدیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے اس نورانی جہاں میں ایسی روشنی پھیل رہی تھی کہ جس طرف نگاہ جاتی وہ منظر خود بخود سجدے میں گر جاتا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہاتھ باندھے ادب کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آگے بڑھ رہے تھے اور حضور کے قدموں کے نشان ہر ذرے کو شرف عطا کر رہے تھے، گویا ہر ذرہ جنت کا مستحق ہو گیا ہو۔ چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ سامنے اونٹوں کی ایک طویل قطار کھڑی تھی، ہر اونٹ کے اوپر ایک صندوق رکھا ہوا تھا اور ہر صندوق پر کفن لگایا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ ان صندوقوں میں کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ راز ہیں جو قیامت تک بند رہیں گے، لیکن آپ کے حکم سے سب کوئی کھولا جا سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، ان صندوقوں کو کھولو تاکہ ہمیں ان کے اسرار دکھائے جائیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی عاجزی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور پہلے صندوق کو کھولا۔ جیسے ہی صندوق کھلا، روشنی کا ایک سیلاب نکلا اور اس میں ہزاروں انڈے تھے۔ ہر انڈے کے اندر ایک ذرہ تھا اور ہر ذرے میں خشخاش کا ایک دانہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس خشخاش کے دانے کو دیکھا تو فرمایا، سبحان اللہ، جبرائیل یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کائنات کا وہ راز ہے جو انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ جب وہ خشخاش کا دانہ کھولا گیا تو اندر ایک آباد جہان نمودار ہوا۔ وہاں دریا بہہ رہے تھے، پہاڑ کھڑے تھے، پرندے اڑ رہے تھے اور ایک عظیم مجمع میں علماء خطبہ دے رہے تھے۔ وہ اعلان کر رہے تھے، اے انسانوں، ان قریب ایک آخری نبی آنے والا ہے، وہ نبی جو زمین کو زندگی بخشتا اور آسمان کو سلامتی عطا کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ان علماء سے فرمایا، اے صاحبان علم، وہ نبی آ چکے ہیں اور جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں یہی وہ آخر الزماں کے نبی ہیں۔ سب علماء فوراً اپنی جگہوں سے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہروں پر نور کی چادر چھا گئی اور سب کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلا، مرحبا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ منظر دل کو کپ کپاہٹ اور روح کو وجد میں لے آتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ایک صندوق کا راز ہے اور ایسے ہزاروں صندوق ہیں، ہر صندوق میں لاکھوں جہان ہیں اور ہر جہاں میں آپ کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کی نبوت کی روشنی ہر ذرے میں داخل ہو کر عالموں تک پہنچ چکی ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور صندوق کو کھولنے کا حکم دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھا اور دوسرا صندوق کھولا۔ اندر ایک شہر تھا جس کے در و دیوار پر لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس شہر کے ہر مقیم کی
पेशानी पर नूर था और सब जिक्र कर रहे थे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, ए जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपकी उम्मत है जो अभी दुनिया में नहीं आई, मगर इनके दिलों में आपकी मोहब्बत रखी जा चुकी है। इनका रिज़्क, इनकी दुआ, इनका ईमान सब इसी जिक्र से जुड़ा है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, अगर ये सब मेरे उम्मती हैं तो क्या इनके गुनाह मुआफ़ होंगे? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये आपका नाम लेकर सिर्फ एक बार भी आंख भर के रोते हैं, या अगर वो एक बार भी ये कलमात पढ़ें, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, तो इनके गुनाहों को ज़मीन से आसमां तक मुआफ़ कर दिया जाएगा और इनके नामा अमाल में हज़ारों नेकियां लिख दी जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, जिब्राइल, इन संदूकों में और क्या कुछ है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी के साथ अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें हर इस शख्स के राज महफूज हैं जो आपसे मोहब्बत करता है, और हर वो आंसू जो किसी ने रात की तन्हाई में आपका नाम लेकर बहाया, वो सब यहाँ महफूज हैं। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, हमने तुझे मट्टी से पैदा किया और मट्टी में लौटा देंगे, मगर इस दरमियानी सफ़र में तुझे अकल दी, शाऊर दिया, अज़ा दिए, दिल दिया, आँख दी, कान दिए, ज़ुबान अता की, और सबसे बड़ी ये नेमत थी कि तुझे हमने अपने बंदों में चुन लिया और तू इससे कहा कि देख, ये ज़िंदगी सिर्फ खेल तमाशा नहीं, हमने तेरी ज़िंदगी के हर मरहले को निशान के साथ बनाया। जब तू रहम में नुतफ़ा था तो हमने तेरी तख्लीक शुरू की, फिर गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर इसमें रूह फूंकी, और जब तू पैदा हुआ तो वालिदैन की गोद में खुशी का महवर बना, फिर दूध पिया, फिर गज़ा खाई, फिर खेल कूद में मशगूल हुआ, फिर जवानी आई जिसे संजीन कहा गया है, फिर दाढ़ी निकली और तू गुलाम कहलाया, फिर मरहक हुआ, जब पूरे जोश से मर्द बन गया, फिर शबाब कहलाया, फिर रजल, फिर कहवल, जब 30 साल की उम्र पार की, फिर जब 40 साल का हुआ तो शेख कहलाया, फिर जब उम्र ढलने लगी, हड्डियां कमज़ोर हुई, बिनाई कमज़ोर हुई, तो अर्जुल उम्र में दाखिल हुआ और यहाँ से ज़िंदगी का ज़वाल शुरू हुआ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी उम्र इस्लाम में 40 साल को पहुँच जाए, अल्लाह ताला इसको 3 बड़ी बीमारियों से महफूज फरमा देता है, जनून, जज़ाम और बर्स। जब 50 साल को पहुँचा तो अल्लाह तबारक व तआला इस पर हिसाब को आसान फरमा देता है। जब 60 साल का होता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसे अपनी तरफ रजू की तौफीक अता करता है, और जब 70 साल का हो जाता है तो आसमान वाले इससे मोहब्बत करने लगते हैं, और जब वो 90 साल का हो जाता है तो अल्लाह ताला इसके तमाम पिछले गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। इसका लक़ब अमीनुल्लाह और असीरुल्लाह फिल अर्द रखा जाता है, यानी ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला का कैदी, क्योंकि वो कुव्वत से महरूम होता है, ख्वाहिशात मर चुकी होती हैं तो वो एक कैदी की तरह ज़िंदगी गुजारता है। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आपने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और पूछा, या रसूल अल्लाह, सबसे बेहतरीन शख्स कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बुढ़ापे को पहुंचे और इसकी नेकियां बहुत ज़्यादा हों। फिर इस शख्स ने पूछा कि सबसे बुरा शख्स कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बुरा शख्स वो है जो बुढ़ापे को पहुंचे और इसके गुनाह बहुत ज़्यादा हों। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 2329 2330। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इब्ने आदम से 5 सवाल होंगे, जिनमें एक ये है कि अपनी जवानी कहाँ खर्च की, अपनी उम्र किस चीज़ में ज़ाया की, अपने इल्म पर कितना अमल किया। सुनन अल तिरमिज़ी हदीस नंबर 2416। हदीस हमें ये याद दिलाती है कि हम सबको एक दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होना है, और इस दिन हमें अपनी जवानी, माल और दौलत और अपने इल्म पर किए गए अमल के बारे में जवाब देना होगा। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के पास एक शख्स आया और कहा, मेरे बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं, ये किस बात की इलामत है? फरमाया, याद दहानी है कि तू इस दुनिया में नहीं रहेगा। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के बाद ये दुआ करो, ए अल्लाह पाक, मैं बुज़दिली से
तेरी पनाह मांगता हूँ, अर्जुल उमर की तरफ लौटाए जाने से तेरी पनाह में आता हूँ और कब्र के आजाब से तेरी पनाह में आता हूँ। अर्जुल उमर से मुराद वो उम्र है जब इंसान बचपन की हालत की तरफ वापस लौट जाता है। ना वो खुद सफाई कर सकता है और ना ही अपना ख्याल रख सकता है और ना ही सूंघने देखने सुनने की ताकत रहती है। घर वालों के लिए बोझ बन जाता है, अकल कमजोर हो जाती है और लोग मौत की तमन्ना करने लगते हैं। अल्लामा आइनी फरमाते हैं, अर्जुल उमर वो उम्र है जिसमें इंसान अपनी अकल खो देता है, समझने की ताकत नहीं रहती, याददाश्त खत्म हो जाती है। ऐसे शख्स की हालत माजूर बच्चे जैसी हो जाती है, वो इबादत नहीं कर सकता, हत्ता कि वो इंसान नहीं पहचान पाता है। सही बुखारी में रिवायत है, हदीस नंबर 6390, 2823, हजरत अता ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत की है कि जो शख्स कुरान पाक की तिलावत करता रहता है, अल्लाह ताला इसे अर्जुल उमर की तरफ नहीं लौटाता। और हजरत अकरमा ने फरमाया, जो इल्म कुरान से जुड़ा रहे वो कभी जिल्लत वाली उम्र को नहीं पहुंचता, बल्कि जितनी उम्र बढ़ती है इतनी इज्जत बढ़ती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, ए लोगो, अगर तुम क़यामत पर शक करते हो तो याद रखो कि हमने तुम्हें मट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर खून के लौथड़े से, फिर गोश्त के टुकड़े से, ऐसा बनाकर तुम्हें निशान बनाया, फिर हम जिसे चाहिए मुकर्ररा वक़्त तक पेट में रखते हैं, फिर तुम्हें बच्चे की सूरत निकालते हैं, फिर बुढ़ापे तक पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि बहुत से लोग ऐसी हालत में पहुंच जाते हैं कि पहले जानने के बाद अब कुछ नहीं जानते। ये आयत सूरह हज में मौजूद है, जिसमें अल्लाह ताला ने इंसान की इब्तदा जिंदगी, बुढ़ापे और बुढ़ापे में कमजोरी व भूलने की हालत के बारे में वाज़िह तौर पर बयान फरमाया है। यानी हर इंसान के लिए निशानी है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का मुशाहदा करे और अपनी जिंदगी को शुक्र, नेक अमाल और खुदा की याद में सिर्फ करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 3 मरतबा ये तस्बीह पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला इसके तमाम गुनाह मुआफ फरमा देता है, ख्वाह वो मैदान जंग से भागने वाला ही क्यों ना हो। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बूढ़ा शख्स आया और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरी उम्र ढल चुकी है, गुनाहों का बोझ है, अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगता हूँ, मगर अपने दिल में खौफ है अपने गुनाहों का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तस्बीह 3 बार पढ़ा करो, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम्हारे दिल पर सुकून नाज़िल फरमाएगा। वो बूढ़ा सहाबी खुशी से नारा तकबीर बुलंद करता हुआ मस्जिद से बाहर निकल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये शख्स तस्बीह पढ़ता रहे तो ये जन्नत में ज़रूर जाएगा, क्योंकि ये तस्बीह गुनाहों को ऐसे गिराती है जैसे दरख्त से पत्ते गिरते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 कलमात ऐसे हैं जो ज़ुबान पर हल्के हैं लेकिन मिज़ाज में बहुत भारी हैं और अल्लाह ताला के नज़दीक महबूब हैं। मोहतरम नाज़रीन, वो तस्बीह सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम, जो शख्स इन कलमात के साथ अस्तग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि भी शामिल कर ले, अल्लाह तबारक व तआला इसके दिल को नूर से भर देता है, कब्र को वुसअत देता है और इस पर जन्नत के दरवाजे खोल देता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा इन कलमात को सुबह शाम 3 बार पढ़ता है, अल्लाह ताला इससे राज़ी हो जाता है, अगरचे इसके गुनाह ज़मीन से आसमां तक लबरेज हों। ये रिवायत सही अल बुखारी हदीस नंबर 6405 और सही मुस्लिम में मनकूल है। ये हदीस हमें अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र, खास तौर पर सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही की अजीम फजीलत के बारे में बताती है। अल्फाज जुबान पर बहुत आसान हैं मगर इनके सवाब में बहुत ज़्यादा वजन है। अगर कोई मोमन दिन में 100 बार सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़े तो अल्लाह ताला इसके गुनाहों को मिटा देता है, चाहे वो गुनाह समंदर की झाग जितने ही क्यों ना हो। यहाँ समंदर की झाग का जिक्र एक तशबीह इजहार है जो गुनाहों की बहुत ज़्यादा तादाद को ज़ाहिर करता है, यानी इसे बहुत ज़्यादा गुनाहों की मुआफ़ी मिलने का वादा है। ये हदीस हमें ये भी सिखाती है कि छोटे और आसान अज़कार भी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े अजर और मुआफ़ी के सबब बन सकते हैं। यही वो कलमात हैं जो ज़ुबान पर हल्के हों मगर अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बेसियार भारी और मकबूल हों। मोहतरम नाज़रीन, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की गर्म फिजाओं में अपने अहले खाना के साथ सुकून के लम्हात गुजार रहे थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवान और चुस्त थीं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत और खंदा पेशानी के साथ फरमाया, आओ हम दौड़ लगाएं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुश होकर तैयार हो गई और बोली, जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी चुस्ती दिखाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे निकल गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मंजर देखा तो मुस्कुरा दिए। चेहरा मुबारक पर वो तबस्सुम था जो दिलों को सुकून देता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कोई शिकायत की ना कोई बुरा भला कहा। कुछ साल बाद जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जिस्म कुछ भारी हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आओ अब दोबारा दौड़ लगाएं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हंस कर बोली, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब कहाँ वो जिस्म, कहाँ वो चुस्ती। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत और हमदर्दी के साथ कहा, आओ दौड़ लगाओ। इस बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए और जीत गए। फिर मुस्कुरा कर फरमाया, ये इस पहली दौड़ का बदला है। ये वाक़या हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरम मिजाजी, मोहब्बत, खंदा पेशानी और अहले खाना के साथ खुशगवार ताल्लुकात का अमली नमूना सिखाता है। मोहतरम नाजरीन, ये तस्बीह हमें ये याद दिलाती है कि छोटे और सादा अल्फाज भी अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बड़े अजर के हामिल हैं। अगर कोई शख्स सच्चाई और खलूस के साथ ये जिक्र अपने दिल और जुबान से करता है तो जन्नत इसका इंतजार करती है, चाहे इसके गुनाह कितने ही हों। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में आसान और मुख्तसर अमाल भी दिल को अल्लाह तबारक व तआला के करीब कर सकते हैं, रूह को सुकून और दिल को रोशनी दे सकते हैं। बस दिल से खलूस और यकीन के साथ अल्लाह तबारक व तआला की याद करना काफ़ी है और यही अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब की राह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि दीन सिर्फ ज़ाहरी इबादत और अहकाम का मजमुआ नहीं बल्कि मोहब्बत, प्यार, इखलाक और रिश्तों में नरमी का नाम है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, ए मेरे रब, तू जानता है मेरी कमज़ोरी, मेरी आजिज़ी और मेरी हर कमी। ए अल्लाह पाक, मुझे अपने जिक्र की मोहब्बत अता फरमा, मेरे दिल को सुकून दे, मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा और मेरी रूह को रोशनी से भर दे। मुझे वो ईमान अता फरमा जो हर इम्तहान में साबित रखे और मेरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक मुझे तेरे कुर्ब के साथ कायम रख। ए अल्लाह पाक, मेरी आखिरत आसान फरमा और मुझे अपनी रहमत से ऐसी नेमत अता फरमा कि मैं तेरे करीब हो जाऊं। ए अल्लाह पाक, मेरे दिल को अपनी मोहब्बत और अपनी याद से भर दे, मेरी आंखों को आंसुओं की बरकत अता फरमा और मुझे तेरी रजा के लिए हर लम्हा जिंदा रख। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मोहतरम नाजरीन, आखिर में आपसे गुजारिश है कि अपने रिज़्क में बरकत, वुसअत, कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।